धन्यवाद। Good morning, sir. At the outset, नमस्कार. on behalf of BRO, I express my gratitude to Honorable Minister of Roads, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, for sparing his valuable time to be with us today. I also welcome Shri Giridhar Ramane, Secretary Roads, Transport and Highways, Shri I.K. Pandey, DGRD, and Special Secretary for joining us today. I also welcome Mr. Khera, engineers of Bharat Construction, and friends from media who are present with us here today. The central government had placed an outlay of approximately 12,000 crores for development of roads under Char Dham in Uttarakhand with an approximate length of about 900 kilometers. Out of these, BRO has been entrusted 250 kilometers costing 3,000 crores, and this consists of about 17 projects or packages on road Rishikesh Dharasu, Gangotri Highway, and the Joshibat Mana axis. Out of the 17 projects, 10 projects, about 151 kilometers, has been sanctioned. Rishikesh Dharasu, about 99 kilometers, a total of 5 packages. Thereafter, Dharasu Gangotri, a total of 3 packages, and Joshibat Mana, another 3 packages. BRO is slated to complete 4 packages and 1 additional packages of kilometers 65 to 76, a total of 5 packages for a length of a total of 66 kilometers. Out of these projects scheduled to be completed between June and October 2020. 3 more packages will complete before the end of the financial year, that is March 2021. A word about Chamba Tunnel. It passes under the Chamba town on Rishikesh Dharasu Gangotri Highway. It is located at a distance of about 60 kilometers from Rishikesh at an altitude of 1500 meters. Chamba town is a prominent location connecting Mussoorie, Tehri and Uttarakashi, leading to very heavy traffic and crowd in the town area. A total of the work was sanctioned for 107 crores, but the contract value was only 86 crores, which includes the tunnel and the 4.2 kilometers approach road. The date of completion of this is Jan 2021. In spite of large number of operational and technical challenges like the LA issues, the heavy built-up areas, the local hindrances by locals due to the local issues here, the corona lockdown affected availability of trained labor and resources. The technical challenges were the rock cover availability, the settlement and loose overburden, for which we had to adopt a drift method of installing steel ribs due to the unfavorable geology in the region. In spite of all these, we are on time and will be likely to complete this by October this year. Bharat Construction has achieved all the milestones in time, and they are ahead of schedule. I extend my appreciation to the state government and the local administration for their continuous support. At this point, I would like to thank all officials of Ministry of Road Transport and Highways for rendering unflinching support and ensuring timely sanctions and fund availability. All this couldn't have been possible without the guidance and support of our Honorable Minister, whose vision and dynamic leadership has given huge impetus to development of roads in remote areas of our country. I, on behalf of Border Roads, assure the Honorable Minister that the BRO will be truly committed and dedicated to nation building and carry forward the vision given to us. I'll take this opportunity to congratulate Chief Engineer Shivalik A.S. Rathore
Commander 36 Task Force Srivastav, and OC BCC Colonel Yash Srivastav, and the engineers of Bharat Construction for having done a wonderful job and meeting all the timelines. May I now finally request the Honorable Minister to address all of us and give us further guidance for road development in the country, and also announce the breakthrough achieved on the Chamba Tunnel today. Thank you, sir. Thank you. Hello. Yes, I am supposed to start it. Hello. Yes, sir. मुझे बोलना है अभी? Yes, sir. We can hear you, sir. Okay. Okay. हमारे सचिव, डीजी, उपस्थित सभी हरपाल सिंह जी और उनके सभी साथी, भारत कंस्ट्रक्शन के सभी प्रमुख, उनके भी सभी काम करने वाले कर्मचारी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले चार धाम परियोजना यह हमारी सरकार की सबसे प्रतिष्ठित ऐसी योजना है, क्योंकि उत्तराखंड में जब हादसा हुआ था और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, तभी ही हमने संकल्प किया था कि हम ऐसा रोड बनाएंगे जो ऑल सीजन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाएगा। अभी साल भर ऑल सीजन रोड इसका नाम रखा गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड है। विशेष रूप से ये 12,000 करोड़ की परियोजना बनाते समय काफ़ी विदेशी कंसल्टेंट है, उनका भी सलाह लिया गया, पर काम भी बहुत कठिन था। आज ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री मार्ग पर 86 करोड़ की लागत से 440 मीटर के लंबे चंबा टनल का काम बीआरओ द्वारा पूरा करने के लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं हरपाल सिंह जी को और उनके साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जब मैं मंत्री बना तो बीआरओ के कामों को देखकर मैं बहुत ही अस्वस्थ था और मैंने काम टर्मिनेट करके बीआरओ के हाथ से निकालने के आदेश दिए थे। अनेक बातों के ऊपर काम ठीक से न होने से, समय पे न होने से मेरे मन में गुस्सा भी था और मैं अक्सर ये कहता था कि मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ऐसे काम कैसे होता है। पर मैं हरपाल सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि पिछले 1.5-2 साल में वो उन्होंने आने के बाद बीआरओ की इमेज को बदल दिया है और जिस प्रकार से वो काम कर रही है, ये निश्चित रूप से भारत के लिए, हम सब के लिए गौरवास्पद है और विशेष रूप से मुझे निश्चित रूप से इस कार्य के प्रति समाधान भी है और मैं हृदय से बीआरओ के सभी अधिकारियों को, हरपाल सिंह जी के नेतृत्व को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। आज इस टनल का तो शुभारंभ हो ही रहा है, पर इसके साथ साथ बहुत कठिन काम जो हमारा पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का था, उसमें भी इतनी कठिनाइयाँ थी कि बहुत मुश्किलों में वो काम था, पर हमारे बीआरओ के शूर जवानों ने बहुत ही कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में ये सब काम पूरे कर दिए और आज वो काम भी लगभग लाइन पर लग गया है और मेरे जीवन में मेरी इच्छा है कि मैं एक बार कार में बैठकर मानस सरोवर तक हिंदुस्तान के पिथौरागढ़ के रोड से जाऊं। मुझे विश्वास नहीं था कि ये इच्छा कब पूरी होगी, पर जिस प्रकार से बीआरओ ने ये काम करके दिखाया तो मुझे लगता है जल्दी ही मुझे जाने का मौका मिलेगा। ये जो चार धाम का भी प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत ही एम्बिशियस है। मुझे लगता है कि ये इस काम में भी विशेष रूप से बीआरओ ने काम तो अच्छा किया है, पर अड़चनें बहुत आती है। कभी कभी इन्वायरमेंट के कारण, फॉरेस्ट के कारण और इसमें कभी कभी स्थानिक लोगों के मुआवजे को लेकर, अलाइनमेंट को लेकर बहुत समस्याएं पैदा होती है, जिसका मुझे पता है।
पर हरपाल सिंह जी के नेतृत्व में बीआरओ ने और विशेष रूप से उत्तराखंड की सरकार ने भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और जिसके कारण ये काम भी पूरे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार को भी और उनके पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव, रेवेन्यू विभाग के सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि ये प्रोजेक्ट करने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ये काम करने में सुरंग में भी कितनी कठिनाइयाँ थी, कमज़ोर मिट्टी के कारण क्षरण ज़्यादा हो रहा था, निरंतर पानी का रिसाव हो रहा था, लोगों के घरों को भी बचाना था और भूमि अधिग्रहण की भी कुछ समस्याएं थी। पर मुझे लगता है कि इन सब समस्याओं पर हमारे बीआरओ के हमारे कॉम्पिटेंट लीडरशिप हरपाल सिंह जी और उनके साथियों ने सफलता हासिल की है और तमाम समस्याओं को उन्होंने सुलझाया है। इस सुरंग मार्ग के निर्माण में ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। मैं अक्सर कहता था कि जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ करेंगे और सुरंग मार्ग को पूरा होने का अवधि जनवरी 2021 है, लेकिन बीआरओ द्वारा इसको अक्टूबर 2020 में यातायात के लिए खोल दिया जाना, यानी मुझे लगता है कि ये अपने आप एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं देश की मीडिया को, बंधुओं को विशेष रूप से कहूँगा कि बीआरओ ने अतिशय कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे जवान वहाँ काम कर रहे हैं और उसके साथ भी उनको सहयोग करने वाले भारत कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां जो है उनको भी मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। वैसे मैं अगर एक आधी चीज़ ठीक नहीं होती तो ठोकने के लिए भी मैं कोई कम नहीं करता, मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं करता उस बातों को। पर अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं भी दिल से देता हूँ। मुझे और बीआरओ द्वारा ऋषिकेश, धरासू, गंगोत्री, जोशीमठ, माना गांव तक करीब 3000 करोड़ की लागत से ये 251 किलोमीटर का कार्य किया जा रहा है। धरासू गंगोत्री हाईवे 22 किलोमीटर 2 परियोजना जून 2020 तक का टारगेट है। ऋषिकेश धरासू 99 किलोमीटर 5 परियोजना जुलाई 2020 का है। जोशीमठ माना गांव 32 किलोमीटर 3 परियोजना और चिन्याली सोड़ ऋषिकेश धरासू बाईपास का निर्माण अक्टूबर तक होगा, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं अक्टूबर 2020 तक कैलाश मानस सरोवर, ये भी हमारे देश के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित बात है। मैं आपके हरपाल सिंह जी, आपके और आपके सहयोगी के कैसे आभार मानूं। देश की जनता, देश का इतिहास आपने परिश्रम और मेहनत से किए हुए कार्य को अनेक सालों तक याद रखेगा, ऐसा इतिहास आपने और आपके सहकारियों ने बनाया है। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर तक दुर्गम पहाड़ी को काटने का काम अब पूरा हो गया है। 4 किलोमीटर की दरी के कटने के बाद अब घटियाबाग से लिपुलेख तक करीब 76 किलोमीटर की लंबी 4 लेन सड़क का काम 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है और कैलाश मानसरोवर तक सड़क बनाने का काम 2018 में आरंभ हुआ है। आदमकद पहाड़ी की मजबूत चट्टान को काटना आसान नहीं था। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से 2 अत्याधुनिक मशीन मंगाकर चट्टानों को काटने का काम भी किया गया है और तेज़ी से काम पूरा करने के लिए वायुसेना की MI-17 और MI-26 हेलीकॉप्टर का लगातार इस्तेमाल किया गया। मैं वायुसेना को, वायुसेना प्रमुख को, डिफेंस मिनिस्टर को और इसमें काम करने वाले सभी पायलट और उनके सहयोगियों को भी विशेष रूप से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ का तापमान सर्वाधिक नीचे होता है, इसलिए पूरे समय काम नहीं हो पाता। बीआरओ द्वारा इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया गया और कैलाश मानसरोवर के लिए ऋषिकेश में सीधे विपुलेख तक सड़क बनाई जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है। ऋषिकेश, अल्मोड़ा, धारचूला, लिपुलेख सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं। उसमें जोशीमठ के पास ओली जो है, जो स्विट्ज़रलैंड में मैं डावोस में गया था, तब ओली को विकसित करके इंटरनेशनल टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार और हमारे तरफ से हम भी उनको मदद करने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर
मार्ग बनने से और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये भी ऑल सीज़न साल भर होने के कारण सबसे बड़ा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस समय पर्यटक की संख्या ये 2 मार्ग होने के बाद और मानस सरोवर होने के बाद उत्तराखंड में 2 गुना 3 गुना बढ़ सकती है, और इसलिए उतने रेस्टोरेंट, होटल्स, रिसॉर्ट्स, उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं, क्लीननेस, साफ सफाई, मेंटेन, ग्रीनरी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हुए ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सब बातें होनी चाहिए, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो दुनिया के फॉरेन टूरिस्ट भी इससे आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे रोज़गार निर्माण होगा, और पर्यटन से ये जो रोज़गार निर्माण होगा वो निश्चित रूप से मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये उत्तराखंड के प्रगति और विकास का एक ग्रोथ इंजन है, और इसलिए उत्तराखंड के भविष्य को बदलने वाले ये प्रोजेक्ट है। अब केवल भारतवासी ही नहीं तो वर्ल्ड के लोग जिस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में जाते, डावोस में जाते हैं, तो दुनिया भर के वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। हम कोशिश कर रहे थे बीच में कि देहरादून से कुछ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो, यहाँ आने तक छोटा एयरपोर्ट कहीं तो भी बने और हमारे टूरिस्ट यहाँ तक आ पाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हम चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, और ये सड़कें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात हरपाल सिंह जी मुझे थोड़ी सी ध्यान में नहीं आई कि 17 पैकेज में से आपने जो बताया कि 10 ही पैकेज अप्रूव्ड हुए हैं, और अभी करीब बाकी जो पैकेजेस है वो अवार्ड हुए हैं या नहीं है इसका मुझे पता नहीं। बाकी अवार्ड हुए हैं सर? सैंक्शन नहीं हुए अभी सर, वो हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट की इंतजार हो रहा है सर, उसके बाद वो होंगे। वो इको सेंसिटिव जोन के पैकेजेस हैं। अच्छा, तो हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट है दिल्ली से है क्या? हाँ सर, हाँ सर। तो मैं हमारे सेक्रेटरी आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव है, तो मैं अभी तो नागपुर में ऊपर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये हाई पावर कमेटी से फॉलोअप करके जल्दी परमिशन दीजिए, नहीं तो आधा रोड पूरा होगा और आधा अटका कर रहेगा तो फिर उसमें अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी दिल्ली में आने के बाद उसका फॉलोअप करूँगा। पर हरपाल सिंह जी, ये बाकी भी पैकेज का काम तो बीआरओ को ही अवार्ड हुआ है ना, जो क्लियर होने के बाद आपको ही करना है ना? हम ही को करना है सर। तो मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अप्रूवल के पहले जो प्रिलिमिनरी कागजी वर्क है, टेंडर निकालने से लेकर बाकी सब बातों तक, वो डिपार्टमेंट से अनुमति लेकर आप केवल पूरा करिए, वर्क ऑर्डर मत दीजिए। मैं दिल्ली आने के बाद हाई पावर कमेटी से जल्द ये सब क्लियर होगा, एक खुद मीटिंग लेकर उसके तरफ उनके साथ बैठकर आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि इसमें बाद में क्लियर होने के बाद 3-4 महीने समय न जाए। तो आप ये प्रिलिमिनरी सब तैयारी करके रखिए और आगे जाइए। निश्चित रूप से ये काम जल्द से जल्द पूरा होकर हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, ये हमारे दोनों काम जो आप कर रहे हैं, ये भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले हैं। और स्वाभाविक रूप से इस काम में थोड़ा सा आज काम करते करते आपके रोड के आजू बाजू में ब्यूटिफिकेशंस के कुछ स्पॉट कैसे बन सकते हैं, कम पैसे में वहीं का रॉक का उपयोग करके, वहीं के मटेरियल का उपयोग करके, कई फाउंटेन्स, कई डिज़ाइंस, कई जो हमारी जो लैंडस्लाइड्स है पहाड़ों के बाजू में, उसको कोई हम लोग ग्रीन कर सकते हैं क्या, अलग अलग प्रकार की स्पेसीज लगा सकते हैं क्या। इसके लिए कोई कंसल्टेंट को अच्छा अपॉइंट करके ये भी एक प्लान आप ज़रूर करिए, ताकि हमारा ये हाईवे वर्ल्ड का सुंदर हाईवे बनना चाहिए। लोगों को यहाँ से ट्रैवल करते समय आनंद होना चाहिए, और निश्चित रूप से इसकी सबकी चिंता भी आपने की ही होंगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और बाकी भी कामों के लिए आपको हमारे डीजी और सेक्रेटरी मिलकर तुरंत उसका ये करके आगे देंगे, नहीं तो आधा काम पूरा होगा और आधा अधूरा रहेगा, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और इसके क्लियरेंस के लिए मैं दिल्ली आने वाला हूँ 1 तारीख को। मैं भी निश्चित रूप से इसमें ध्यान दूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण मैं भी नागपुर नहीं आ पाया दिल्ली। आने के बाद मैं भी प्रायोरिटी से इस काम को करूंगा।
मेरे दिल में आज बहुत बड़ा समाधान है। काफ़ी बार मैंने बीआरओ के अधिकारियों को काफ़ी डांट भी पिलाई है, मैं बहुत नाराज़ भी हुआ हूँ, पर आज रियली मैं आपके इस काम से बहुत गौरवान्वित हुआ हूँ। और हरपाल सिंह जी, मेरे तरफ से आपके एक एक छोटे छोटे आदमी तक, आपके कॉन्ट्रैक्टर तक मेरी बधाई पहुँचाइए और मेरा अभिनंदन पहुँचाइए कि कंट्री को, देश को आप सबका बहुत अभिमान है। बहुत कठिन प्रतिकूल परिस्थिति में आप कितने प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं, ये मैं कल्पना कर सकता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं लद्दाख और लेह में गया था तो वहीं ऑक्सीजन के कारण हालत ख़राब हो गई थी, और आप वहाँ जो काम कर रहे हैं वो रियली इट्स ए ग्रेट प्राइड फॉर होल कंट्री। आपके इस कार्य का इतिहास निश्चित रूप से नोन लेगा, देश की जनता नोन लेगी। मैं हमारे जो पीआरओ है उनको कहूँगा, कौस्तुभ फलटनकर जी को, कि सोशल मीडिया के द्वारा और विशेष रूप से हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपके सब काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अधिकारियों के फ़ोटो भी दीजिए। हमारे फ़ोटो नहीं आए तो चलेंगे, पर जिन लोगों ने बहुत कठिन स्थिति में काम किया है, ऐसी सब जानकारी उसके फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठा करके आज बने तक ही आज दे दीजिए। मैं देश भर के मीडिया में इसको सर्कुलेट करने के लिए पूरी तरह प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया में भी मैं पिछले कुछ दिनों से हूँ, पहली बार मैं करीब 14 करोड़ लोगों तक पहुँचा हूँ। मेरे फॉलोअर्स भी काफ़ी बड़े हैं, मुझे भी पता नहीं था, मैं इतना कभी एक्टिव नहीं था, पर यह लॉकडाउन के कारण और इस परिस्थिति के कारण एमएसएमई के मंत्री होने के नाते मुझे काफ़ी मौका मिला। तो मैं निश्चित रूप से आज की इस इवेंट को मेरे सोशल मीडिया पे भी ट्वीट करूंगा, भेजूंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उनको भी मैं आज की ये सूचना भेजूंगा, ताकि उनके तरफ से भी वो आपका अभिनंदन करेंगे। फिर से एक बार दिल से आपको, आपके सभी सहयोगियों को, हमारे भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारीगण और उनके सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएँ। और एक काम जरूर करना आप, कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा हरपाल सिंह जी, तब इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्टर, सभी अधिकारी, इनको बुलाकर दिल्ली में इनको एक सर्टिफिकेट और इनके सत्कार का कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित करेंगे। और इनको मैं खाना भी खिलाऊंगा, अपने घर बुलाऊंगा। और मैं फिर से एक बार इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि टारगेट में, ये टारगेट के पहले ये काम आपने जैसे किया, वैसे बाकी की कामों को आप गति दीजिए। जो क्लियरेंसेस आपके बाकी है उसके पीछे मैं तुरंत लगूंगा। आप प्रिलिमिनरी टेंडर निकाल कर वर्क ऑर्डर देने तक की बातों तक उसको वर्क ऑर्डर मत दीजिए, बाकी सब बातों को करके रखिए। जल्दी ही ये भी काम निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। ऐसे समय में वहाँ नहीं रह पा रहा हूँ, इसका भी मुझे दुख है, क्योंकि मैं नागपुर से ही अभी तक दिल्ली नहीं आया हूँ। फिर से एक बार यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर में मैं हूँ, और आप तो उधर, आपका वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अलग है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, पर वैसे प्रतिकूल स्थिति भी आपके लिए बहुत होती है वहाँ। फिर भी आपके इन सब प्रयासों को बधाई देता हूँ। और हमारे सचिव जो है वो निश्चित रूप से आपके जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उसका डीजी और सचिव महोदय फॉलोअप करके जल्दी ही क्लियरेंस करने में पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपने जो इतने प्रशंसनीय शब्द बीआरओ के लिए बोले हैं, उनके लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। और जो आपने हमें चैलेंज दिया है, जो टारगेट दिया है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसको पूरा करने में हम कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से जो एक रिचुअल होता है, पूजा सेरेमनी, इसकी इजाजत चाहूँगा। ओके करिए, नो प्रॉब्लम।
शिवाज्ञा प्रदेशामगुरुं पूजा कर्मं समारभे पूजा नमः सश्रीयासन कृष्णे देवी पूजने देवी नमः नमस्ताय नमः कृष्णाय नमः भगवान श्रीष्णाय नमः समर्पणे नमः ओम पृथ्वीतया दधा लोकादिवितं दधातु आदमा बते पवित्रं पुरुषाशं श्रीष्णाय नमः सर्वात्मकाय नमः सुतोगराय नमः देवानां निर्गमातं पुरस्तां बुद्धाताय घंटानादं करोम्यहं पादित्वा स्वां भागे स्थापितः प्रत्यक्ष देवाय नमः सूर्य नारायणाय नमः भगवान कानवासाय नमः आकृष्णे ध्वंसको प्रसिद्ध सुंदर सुदेव को पाद तथा कृष्ण संका संका सुयम सर्वस्मी दिवाकर भगवान सूर्य नारायणाय नमः ओम नमः सहस्रगुण सर्वव्याधि विनाशनाय प्राणार्घ्यमया दत्तं संज्ञा सहितो हरे नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे तत्मर्घ्यमया भानति जान नमस्ते ये सूर्य सहस्रांशो तेजो यमा प्राणार्घ्यं दिवाकराः भगवान सूर्य नारायणाय नमः देवाय नमः श्रीमन् महागणपते नमः वक्रतुण्ड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा भगवान श्रीमन् महागणपते नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः अस्तानि देवी देवता जो नमः भगवान विश्वकर्मणे नमो नमः गन्धद्वारा द्वादशां कटिकां कदिशं सर्वभूतानां तानि भूत नन्नं सदा विद्यमान पश्चिमी समर्पयामि भगवान विश्वकर्मणे मैं मंत्री महोदय से फाइनली टेक ऑफ करके ड्राइव थ्रू की आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू। Right, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। आता इकडनं जा.